Hello, dear students. Today we will start unit number 2. The name of that unit is Distributed Forces and Friction. Okay, so in this unit we will study this following points or topics: centroid of area and lines, moment of inertia, moment of inertia and third topic is friction. Okay, again in friction there are subtopics. Block friction, wedge friction, ladder friction, and belt friction. ओके, सो इन सब टॉपिक पे एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में रहता है. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट द सेंट्रॉइड. ओके, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया and centroid of lines. So before studying centroid we will discuss about the center of gravity. Okay, आपने ये सुना होगा center of gravity. Center of mass, center of volume and centroid. Okay, so what is center of gravity? Okay, what is meant by center of gravity? See, suppose this is the body. Okay, and this body is composed of number of particles. Okay, these particles are attracted towards the center of earth like this. Suppose this is particle 1, particle 2, particle 3. Okay, these particles are attracted towards the center of earth. Suppose this is the center of earth like this. Why these particles get attracted towards the center of earth? Just because of the gravitational force, and this gravitational force is exerted by the earth on the particle is nothing but the weight of particles. So these are weights. Okay, these are weights. Now see in this figure, the weight of this particle is W1. There are n number of particles. Okay, W2, and this is W3. Okay, all the weights of these particles will form a system of parallel forces at the center of earth. Okay, like this. These are the parallel forces. Okay. So what is the center of gravity? What is the center of? I will always show the center of gravity by red pen or centroid by red pen. Okay, so this is the center of gravity. Okay, what is this capital W? This is the weight of this body. So this is the point which is center of gravity. So what is center of gravity? The point through which the resultant of all these parallel forces passes in all position of body is called as the center of gravity, or where it is the point where whole mass of body is supposed to be concentrated.
whole weight of body is supposed to be concentrated. So center of gravity is that point at which whole weight of body is supposed to be concentrated. That is called as the center of gravity. Now you know the definition of center of mass, where whole mass of body is supposed to be concentrated, right? Center of mass is where whole mass of body is supposed to be concentrated. Volume, where it is the point where whole volume of body is supposed to be concentrated. Okay, now the main टॉपिक इज सेंट्रॉइड. ओके, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज द सेंट्रॉइड? सी, अर्थ अट्रैक्शन हैज नो इफेक्ट्स ऑन द लाइन्स, कर्व्स एंड areas, one dimensional and two dimensional figures. Okay, because they do not possesses any mass or volume. ठीक है, that's why earth's attraction has no effect on these lines and मतलब क्या, अर्थ का जो अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उनका लाइन के ऊपर या एरिया के ऊपर कुछ इफेक्ट्स होता ही नहीं है. वाई? बिकॉज दे डू नॉट possess any mass and volume. Therefore the center of gravity, center of mass and center of volume does not apply to lines, curves or any geometrical figure. मतलब क्या, वन डायमेंशनल, जैसे कि लाइन क्या है, वन डायमेंशनल है. ओके, कर्व वन डायमेंशनल है, एरिया टू डायमेंशनल है. ठीक है, ये तीनों जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ वॉल्यूम, ये अप्लाई होते ही नहीं है इनके ऊपर. बट दिस फिगर हैव पॉइंट सिमिलर टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, जैसे कि अब देखो, ठीक है, ये लाइन है. ओके, दिस इज लाइन ए बी हैविंग लेंथ 10 मीटर. ओके, एंड दिस इज द स्क्वायर हैविंग साइड 2 मीटर. A, B, C, D. Okay, we have two diagrams, 1 and 2. ठीक है, now this figure is having the point similar to center of gravity. Okay, जैसे कि ये इसका सेंटर है, AB का सेंटर कहाँ पे आएगा? A पॉइंट से 5 मीटर डिस्टेंस पे आएगा. A पॉइंट से 5 मीटर डिस्टेंस पे आएगा. तो ये पॉइंट क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड एज द centroid. Now in length, where whole length of body is supposed to be concentrated, right here. Now see, this is the two dimensional figure square. Okay, so उसका centroid कहाँ पे act होगा? जहाँ पे स्क्वायर का एरिया कॉन्सेंट्रेट हो रहा है. ठीक है, लेट्स से यहाँ पे where whole area is supposed to be concentrated. तो ये centroid कहाँ पे आएगा? यहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस पे, और यहाँ से मतलब ए बी से 1 मीटर डिस्टेंस पे. ठीक है, यहाँ पे आ रहा है सेंट्रॉइड, यहाँ पे आ रहा है सेंट्रॉइड. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड. वेयर होल लेंथ ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, वेयर होल एरिया ऑफ बॉडी नहीं, लाइन, वेयर होल एरिया ऑफ शेप is supposed to, or lamina is supposed to be concentrated, that is called as the centroid. ठीक है, हम सबसे पहले अभी एरिया का सेंट्रॉइड देखेंगे, उसके बाद लाइंस का सेंट्रॉइड देखेंगे, लाइंस और वायर बैंड्स. ठीक है, कोई भी एरिया रहे, अभी जैसे कि ये सपोज ये रेक्टेंगल है. ओके, 4 मीटर बाय 6 मीटर बाय 4 मीटर. तो सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करेंगे इसका? देखो, आपको सेंट्रॉइड जब फाइंड करते हो आप, तो वो सेंट्रॉइड को जो डिस्टेंस रहता है, सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस रहता है, वो पर्टिकुलर एक रेफरेंस पॉइंट से या एक्सिस के इससे हम लेते हैं. ठीक है, अब ये सेंट्रॉइड है. ठीक है, अब इसका डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे? वाई एक्सिस से मेजर करेंगे और एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे. ठीक है, तो ये डिस्टेंस वाई एक्सिस से हो गया, ये डिस्टेंस हो गया एक्स एक्सिस से. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द
अब देखो, जो डिस्टेंस x को पैरेलल रहेगा हम उसको बोलेंगे x कोऑर्डिनेट, और जो डिस्टेंस y को पैरेलल रहेगा उसको बोलेंगे y कोऑर्डिनेट। जैसे कि आप देखो नंबर लाइन पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हो, ठीक है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हो तो क्या रहता है, सपोज ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये क्या हो गया 1 2, एक्स पहला जो कोऑर्डिनेट रहता है वो एक्स रहता है, दूसरा 1 2 2, ये क्या हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या हो गया वाई कोऑर्डिनेट। तो आपने देखो कैसे मेजर किया, जो वाई को पैरेलल है वो वाई कोऑर्डिनेट, जो एक्स को पैरेलल है वो एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम वाई एक्सिस इज x coordinate and distance of centroid from x axis is y coordinate. See, distance of centroid from y axis is called as x coordinate and distance of centroid from x axis is y coordinate. ठीक है, जो ध्यान में रहता है आप वो देखिए, x को पैरेलल x कोऑर्डिनेट रहेगा, y को पैरेलल y कोऑर्डिनेट रहेगा, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी ये हो गया एक सिंगल डायग्राम का सेंट्रॉइड। अब कभी कभी आपको कंपोजिट डायग्राम दिया हुआ रहेगा, मतलब कि जैसे कि ये अभी रेक्टेंगल है तो आपको ऐसे इसके ऊपर एक और ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये ट्रायंगल की हाइट सपोज रहेगी 2 मीटर या 3 मीटर। ठीक है, सो अभी इसके स्टेप्स है कि ये पूरे डायग्राम का सेंट्रॉइड हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम में अगर रेफरेंस एक्सिस या दी हुई नहीं है तो आपको वो डिटरमाइन करनी है, फाइंड करनी कि एक्स एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस कौन सी है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट एक्सिस, उसको हम रेफरेंस एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हाँ फाइंड करेंगे कि डायग्राम जो है या लैमिना जो है कुछ भी एरिया वो x को सिमेट्रिकल है या y को सिमेट्रिकल है। ठीक है, सी वेदर डायग्राम इज symmetrical about x or y axis. If it is symmetrical about x axis, then y bar of whole diagram will be 0 and it is symmetrical vice versa about y axis, then x coordinate will be 0. ओके, ठीक है, अभी ये नहीं रहा। ठीक है, अगर ये नहीं है मतलब सिमेट्रिकल नहीं किसी एक्सिस को, तो वो ये सेकंड स्टेप आपको स्किप करनी है। अभी थर्ड स्टेप क्या है, स्प्लिट और डिवाइड, स्प्लिट और divide given area into segments, then नंबर 4 यहाँ पे लिखती हूँ मैं। ठीक है, 4 फाइंड their areas x coordinate and y coordinate. Okay, yes, and put them into following
फॉर्मूली कौन सा है? अगर आप x बार फाइंड करते हो तो x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस xn an अपॉन a1 प्लस a2 प्लस an। सिमिलरली y का क्या आएगा? y1 a1 प्लस y2 a2 प्लस yn n अपॉन a1 प्लस a2 प्लस an। ओके, सो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है इसमें आपको, जो आपने इसका a1 x1 y1 फाइंड करेंगे, फिर इसका हाँ एक डायग्राम रहेगी सपोज 1, एक डायग्राम रहेगी सपोज 2। सो इसका क्या आएगा? a1 y1 x1 आएगा, इसका क्या आएगा? a2 y2 x2। तो ये फॉर्मूले में पुट करेंगे और ये पूरे डायग्राम का हम x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो ये स्टेप्स हो गए। अभी ये स्टेप्स समझ में आ रहे तो ठीक, अगर नहीं भी समझ में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम न्यूमेरिकल एक लेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी एक न्यूमेरिकल लेंगे हम। न्यूमेरिकल लेने से पहले हम जो जितने भी शेप्स है, ठीक है, उसका पहले सेंट्रॉइड क्या रहता है, एरिया क्या रहता है, वो फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्क्वायर। ओके, स्क्वायर का एरिया यहाँ पे हम पहले सीखेंगे कौन से शेप्स हैं, फिर वो शेप का एरिया, फिर उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो स्क्वायर है। ठीक है, देखो अभी सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज square. See, the side of the square is A. Okay, where is the centroid? Here. Now tell me what is the area of square? Area of square is A square. ठीक है, अभी ये जो रहेगा ये क्या रहेगा? x बार, और ये क्या रहेगा? y बार। So what will be x बार? a के हाफ a बाई 2, y बार विल बी a बाई 2। ठीक है, इसके बाद आएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है b और वर्टिकल डायमेंशन है h, हाइट या कुछ भी a b कुछ भी आप लिखिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? b इंटू h, राइट, b इंटू h। व्हाट इज x? अभी देखो ये रहा उसका सेंट्रॉइड। ठीक है, ये रहेगा x और ये रहेगा y। सो ये क्या रहेगा? x क्या रहेगा? b बाई 2, y क्या रहेगा? h बाई 2। देखो कैसे, ये पूरा h है, सेंट्रोइड यानी क्या? उसके हाफ, h के हाफ आएगा y। ठीक है, ये पूरा b है, सेंट्रोइड यानी क्या? b के हाफ। ठीक है, हाफ कितना आएगा? x, b बाई 2। ठीक है, अभी लेंगे हम ट्रायंगल। ठीक है,
Suppose this is equilateral triangle or isosceles triangle. Okay, this is the base B, height h. Okay, what is the area of triangle? Half base into height, right? Then what is x? See, अभी ये जो इसका सेंट्रॉइड रहेगा ये बिल्कुल इसके यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मेरिडियन है ना, या हाइट उसके बीच में एक्ट होगा. मतलब यहाँ से जो उसके दो पार्ट होते हैं, सी दिस, सो दिस विल बी द सेंटर. ठीक है, यहाँ पे वो एक्ट होगा. अभी x क्या रहेगा, उसका x क्या रहेगा? दिस इज y एक्सिस. सी दिस इज x and this is y.